खुशियों से भरित पाई, चिंता मुक्त ये दिन और रातें, सुहावना मेरा बचपन। सखी सहेली खेल खिलौने, पुस्तक कापी टिफिन बस्ता, विद्यालय को नित्य जाती, शिक्षा से सवरा है रास्ता। अम्मा की मैं बिट्टू रानी, बाबा का तो पूरा गुलशन, पढ़ लिख कर मैं बनूंगी अफसर, नाम करूंगी उनका रोशन। मुझको मेरा बचपन प्यारा, प्यारे मुझको मेरे अपने, गुड्डी गुड़िया खेल खिलौने, प्यारे मुझको मेरे सपने। गोदी मेले कहे कहानी, मेरी दादी मौसी नानी, मैं सबकी आंखों का तारा, सुखद सलोने मेरे बचपन। बचपन वाकई मासूमियत और खुशी से भरपूर पल, जब ना कोई जिम्मेदारी होती है ना ही किसी प्रकार का तनाव हर पल घेरे रहता है। आपका हमारा बचपन ऐसा ही रहा है, क्योंकि बचपन में तो ऐसा बीतना ही चाहिए, हंसते खेलते सीखते सिखाते। लेकिन इस तरह का बचपन हमारे सभी बच्चों के नसीब में है? शायद नहीं। हमारी लाखों बच्चियां इन पलों को नहीं जी पाती। उनका बचपन हमारे बचपन की हकीकत से कोसों दूर है। बिल्कुल। Did you know that 1 in every 3 girls who are married in their childhood globally lives in India? Child marriage isn't just a cultural or social issue. It is one of the worst forms of human rights violations, mostly affecting young girls, denying them their right to free choice as well as the right to enjoy their childhood. It isn't just a social evil, it's a crime. लेकिन बदलाव हो रहा है, जमीन पर ये दिख भी रहा है। शिक्षा, जागरूकता, नीतियों में बदलाव, कानून का सख्ती से पालन इस बदलाव को रफ्तार दे रहे हैं। कई पहल बदलाव ला रहे हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन एक ऐसी ही पहल है। ये 250 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का नेटवर्क है जो देश भर में साल 2022 से काम कर रहा है। मकसद सिर्फ एक है कि साल 2030 तक देश भर में बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर फुल स्टॉप लग जाए। ये कैंपेन उन जिलों में तेजी से काम कर रहा है जहां बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज्यादा है। Remarkably, what started as a grassroots effort has today become a transformative movement that's reshaping the nation's fight against this grave injustice. In a historic milestone in India's fight against child marriage, the Ministry of Women and Child Development has launched a pan-India campaign, Bal Vivah Mukt Bharat, as an effort to combat child marriage. The campaign is expected to reach up to 25 crore citizens for a collective pledge against child marriage. Take a look at this report. With almost 1 in every 5 girls in India being married off before reaching adulthood, the social evil of child marriage needs critical attention. And that is the purpose of the pivotal Bal Vivah Mukt Bharat campaign launched last month in the presence of civil society members, grassroots advocates and government officials at Vigyan Bhavan. The strongest voice for raising awareness against child marriage came from powerful testimonies of young girls from different states like Andhra Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, who shared their personal journeys and struggles. 13 साल की उम्र में शादी होने के बाद फिर जब शादी हुई तो जब मैरिटल रेप था और डोमेस्टिक वायलेंस की हिंसा मैंने खुद सही है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये महज एक अभियान नहीं, ये कोई 16 दिनों का 15 दिनों का अभियान नहीं, बल्कि ये निरंतर, जैसे हमने सभी से ये आह्वान भी किया है कि सब लोग हम सब मिलकर ये निरंतर तब तक इसको जारी रखेंगे जब तक बाल विवाह मुक्त भारत ना हो जाए। A key feature of the initiative is the launch of the Child Marriage Free Bharat portal, a platform to raise awareness, report cases and monitor progress. The Bal Vivah Mukt Bharat campaign seeks to engage multiple stakeholders in a collective effort to eliminate child marriage. There are 23.3%
children in India are getting married below the age of 18 years. Today is that day where the tide turns in favor of children, and I hope tomorrow will bring a new era of child protection across the nation. The Bal Vivah Mukt Bharat Abhiyan will focus on districts with a high incidence of child marriage while engaging all stakeholders across the country. The campaign hopes to align itself with Prime Minister Narendra Modi's vision of Viksit Bharat by 2047 by addressing states with a high prevalence of child marriage. और आगे बढ़ने से पहले आप सभी यानी कि हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारी इस मुहिम से जुड़े। हम सबको हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है और ये साथ मिलकर काम करने में ही मुमकिन है। आप सभी ndtv.com/child marriage free India पर लॉगिन कर प्लेज ले सकते हैं ताकि बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर लगाम लग सके। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भुवन रिभु, एडवोकेट हैं, एक्टिविस्ट हैं, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक भी हैं। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सरकार की पहल बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को भारत में बाल विवाह के प्रचलन के रोक लगाने के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। ऐसे में अब आगे का रोड मैप आपके लिए अब क्या दिखाई दे रहा है? भारत सरकार की बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू करने की पहल न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। बाल विवाह कोई भारतीय अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व में व्याप्त है। लेकिन भारत में पहली बार न केवल समाज, न केवल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इस पे अहम फैसले आए हैं, बल्कि पूरी सरकार ने इस पे जो कदम उठाया कि हम भारत से बाल विवाह को 2030 से पहले खत्म करके दम लेंगे, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले समय में न केवल जागरूकता होगी, न केवल गांव-गांव में लोग इस पे शपथ लेंगे, 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये अभियान पहुंच चुका है और पहुंचने वाला है। तो अगर इतनी बड़ी संख्या में देश के हर गांव में, हर स्कूल में बच्चों के बीच में जागरूकता होगी, अगर हर पंडित, हर मौलाना, हर चर्च का पादरी, हर धर्मगुरु इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगेगा, अगर हर बैंड वाला, हर हलवाई, हर वो व्यक्ति जो कि समाज में शादी को किसी भी तरह से मदद करता है, वो अगर ये पूछने लगे कि ये बच्चों की उम्र क्या है जिसके लिए मैं ये बैंड देने वाला हूँ, ये घोड़ी देने वाला हूँ। भारत में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है शादी, ये एक समाज का उत्सव है और समाज के इस उत्सव को किसी भी तरह से बच्चियों के बलात्कार के जघन्य अपराध का जरिया नहीं बनाया जा सकता। तो समाज इसमें अब आगे बढ़ के आएगा और सरकार ने ये कह दिया है कि हम आपके साथ हैं। सरकार द्वारा शुरू किया गया बाल विवाह मुक्त भारत अभियान न केवल पूरे देश को ये दिशा दे रहा है कि सरकार भी इसमें साथ है, समाज तो आगे बढ़ेगा ही। और कल अगर कोई बच्चा फोन करता है, कल कोई सामाजिक संगठन यदि इसके खिलाफ आवाज उठाता है, कल यदि कोई पंडित, कोई मौलाना साहब ये कहते हैं कि हम ये शादी नहीं करेंगे, तो उसके पीछे कानून का पूरा जोर है। कानून, समाज, सरकार और हम सब बच्चों की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। आज ये साबित हो गया है। Now, Bhuvan ji, the Bal Vivah Mukt Bharat campaign, it's built on the foundation of relentless hard work that's been done by various NGOs, your own organization, Just Rights for Children. So now going forward, how do you think you can use civil society as well as other NGOs that are working on this to really amplify this entire campaign and the messaging? Child marriage is an age-old problem, and efforts have been undertaken to solve this crime and solve this human rights abuse in its worst form from at least 200 years. In the last 200 years in India, yes, efforts have been made by various stalwarts. Today we have reached that tipping point where there is a whole of society and a whole of government approach which has come together. This will usher in a new culture, a new era of accountability, a new era of action. This is the tipping point to end child marriage. We are living it right now because for the first time we have scientifically understood that the problem is existing in the worst 330 odd districts, and if we are able to reduce this by 70% in these districts, we will reach the tipping point of ending child marriage, and child marriage prevalence will become 2.9% over the next 5 years. So we have not only
ushered this in through a lot of emotion, through the hard work and efforts by these ladies that you are seeing on the screen, Yes. you know, all around us. These women started this campaign. They actually took the first steps to light this fire, and this spark has become a wildfire not only in India but across the world. It started from India, but in the last 1 month, in 39 countries, people have taken the pledge. Countries like Burkina Faso, Democratic Republic of Congo, countries like Zimbabwe, Zambia, countries whose names sometimes we have not heard are now looking at India. India has not only become the Vishwa Guru in other things, but this is India's message to the world in the 21st century, that we will end child marriage now through this collective accountability and responsibility. So this is changing as we are speaking. जी बिल्कुल। और भुवन जी, आपके जीवन का भी लक्ष्य रहा कि हमारे देश में बाल विवाह पूरी तरह से रुक जाए, उसकी रोक लगे। और ऐसे में आपकी अपनी जर्नी कैसे रही है अपने लक्ष्य तक धीरे धीरे पहुंचने में, और जो राष्ट्रीय अभियान अब भारत सरकार का है वो कैसे आपके अपने अभियान से जुड़ रहा है? आज से करीब 12-14 वर्ष पूर्व एक बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि एक बिटिया की शादी होने वाली है अंडमान में, जिसने पुलिस को कंप्लेंट की है ऑफिशियली कि मुझे शादी से बचाया जाए, हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा आप तुरंत कार्रवाई कर दीजिए। अब दुर्भाग्य ये था कि भारत का कानून उस वक्त तक ऐसी कोई बेटी जिसकी शादी होने वाली है उसकी सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा था, कोई कानून में प्रावधान ही नहीं था। पुलिस एफआईआर कब काट सकती है? तब काटेगी जब शादी हो चुकी है। तो अपराध के बाद तो पुलिस का रोल है, लेकिन अपराध को रोकने के लिए हम सिर्फ माता पिता को समझा सकते थे। तो हमने किया, माता पिता को समझाया गया, पुलिस अधिकारी वहाँ गए, और बहुत ही दुख की बात ये थी कि उस बेटी की शादी उन्होंने अंडमान से निकाल के तमिलनाडु लाए और तमिलनाडु में कर दी 2 महीने बाद। इस बच्ची ने उस पुलिस अधिकारी को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा होने का कोई फ़ायदा नहीं। वो वहाँ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा तुम छोड़ दो ये सब जो तुम्हारा ज्ञान है ये बेकार है, ये जितना भी तुम बाल अधिकारों की सुरक्षा की कानूनों की बात करते हो, अगर हम उस बच्ची को बचाने में नाकामयाब हो गए तो अब फ़ायदा क्या है? वो बेटी तो फ़ोन करके कह रही है कि कोई तुक नहीं है। इस घटना के कुछ वर्ष के पश्चात भारत में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो निर्भया के कांड के बाद एक पूरा बदलाव आया, पूरे मूलभूत परिवर्तन हुए कानूनों में, उसमें ये एक बदलाव था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। मैंने उसकी ड्राफ्टिंग में सरकार की मदद की थी। तो मैंने तब सरकार को ये सुझाव दिया कि एक ऐसी बेटी जो कि शादी जिसकी होने वाली है, हु इज़ एट इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज, शुड बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, जिसको सरकार उसकी सुरक्षा के लिए उसके माता पिता से उसकी कस्टडी ले सकती है। ये कानून में बदलाव हुआ, आज ये बदलाव है। ये 2015-16 की बात है, और शादी अगर कर दी जाए तो माता पिता के ऊपर तभी कानून में बदलाव आया कि ये क्रूल्टी माना जाएगा। 2016 में हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की कि अगर किसी बच्ची के साथ शादी होने के बाद भी कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या यौन संबंध स्थापित करता है तो इसे बलात्कार माना जाए, इसको पॉक्सो की श्रेणी में रखा जाए। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में इस पे फैसला दिया। आज भारत में ये आईपीसी की प्रॉपर ऑफेंस है। सेक्शन 63 जो बीएनएस अभी आया है, भारतीय न्याय संहिता में लिखा गया कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और शादी के भीतर भी होता है तो ये रेप माना जाएगा। तो ये धीरे धीरे करके हमने कानूनों को बदला। अब उस बेटी को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन भारत की तमाम बेटियां जिनको बचाने की ये मुहिम जारी है और शुरू हुई है, पिछले 1 साल में 2,15,790 बेटियों की शादी हमारे संगठनों ने सरकार की मदद से जाके न केवल रोकी है, बल्कि माता पिता को उसके बारे में जागरूक करा के उनसे अंडरटेकिंग लिखवाई है कि शादी हो गई तो तुम जेल चले जाओगे। इससे समाज में एक नए जागरण, एक नए किस्म के
जो कानून के प्रति रिस्पेक्ट है उसका एक भाव जागृत हो रहा है। तो मुझे लगता है इसी दिशा में आगे हम बढ़ेंगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी। In fact, we want to talk more about that. We've just spoken about how child marriage is one of the worst forms of human rights abuse, robbing children of their childhood, education, health, and freedom. But there are girls whose courage to fight against child marriage, sometimes despite overwhelming opposition, shows that change is possible even in the most difficult circumstances. We just heard from Bhuvanji regarding that. Now, these girls represent hope and resilience in the face of deeply entrenched societal norms. Radha and Preeti, their names have been changed to protect their identity, are among them. This is their story. "14-year-old Radha's marriage was fixed by her father while her mother was staying away from home because of work. Radha tried to resist, but her alcoholic father did not listen and even threatened to poison her food if she refused to marry. Alone and vulnerable, Radha gathered the courage to take charge of her situation. One day, on the pretext of going out to buy groceries, Radha approached the deputy sarpanch of her village and told him about her situation. बच्ची बहुत डरी सहमी हुई थी, रो रही थी फ़ोन पे हमके रो कर बहुत बात बताई कि इसी से हम शादी नहीं करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं। हम दोनों आदमी मिलकर के निर्देश को खबर दिए, जो मैडम लोग हैं ये वहाँ से आए, कुछ हमारे जीविका के लोग भी हैं इसमें। Upon receiving this information, the NGO Nirdesh, a partner of Just Rights for Children, swung into action. They took the paperwork and submitted it to the Child Marriage Prohibition Officer of her district. बच्ची अपना आवेदन लिख करके दी जो उसके साथ घटना घटी थी। बच्ची का कहना था जो उसमें हमें ज़बरदस्ती शादी किया जा रहा था और लड़का बहुत उम्र में ज़्यादा था और दिमाग उसके पास नहीं था और वो शादी उसी रात होने वाली थी। तो वो लड़की अपने उप मुखिया के पास जाके बताई कि चाचा हमें बचा लीजिए, हमें शादी जबरन किया जा रहा है। The team from Nirdesh, along with the police, counseled Radha and her family, made them sign an undertaking and stopped her marriage. They also arranged a safe shelter for Radha away from her father. Radha is now back in school and regular follow-ups are done to check her situation. Over 1,000 kilometers to the west from Rajasthan's Tonk emerges another story of grit, of how a 15-year-old Preeti's determination not to get married was supported by a local NGO. It was during Akshaya Tritiya, a period considered auspicious for marriages, that Preeti's parents decided to get Preeti and her elder sisters married. One day while returning from school, Preeti came across NGO workers from Seco Dicon, a partner of Just Rights for Children, talking about the ill effects of child marriage at an Anganwadi center. Mustering up courage, Preeti approached the workers and told them about her own situation. तो सिकोन डिकोन संस्था द्वारा जो मैसेज मुझे मिला किरण जी शर्मा के द्वारा, उस पर मैंने संज्ञान लिया। उस स्थिति में मैंने हमारे वार्ड पंच महोदय और वहाँ पे स्थानीय ग्रामीण से संपर्क किया, तो वहाँ पे शादी थी। उसकी सूचना के तहत मैंने मुख्य पे गया, उनसे बातचीत भी की। चुनौतियाँ बहुत सारी हमारे सामने आई, जैसे कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी उनकी। हमने फिर भी समझा बुझाकर उनको बताया कि जैसे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, सोचो एक बार ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, कैसे क्या करोगे। अगर आपकी बच्ची पढ़ लिख जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो कल को उसकी शादी तक वो ही मैनेज कर सकती है। Preeti's marriage was stopped, her education was resumed and her parents were made to sign an undertaking. Survivors like Radha and Preeti not only reclaim their lives but also become powerful voices in the fight against child marriage. It is important that their stories be told as examples of what can be achieved when all of society acts together. If girls are educated and the ecosystems from which they derive their courage are strengthened, more and more Radhas and Preetis will emerge from every corner of the country, taking this fight towards our united goal of ending child marriage in India. बाल विवाह पर रोक लगे, यही है हमारी मुहिम का मकसद। और हमारे साथ भुवन जी लगातार बने हुए, हमने ये कहानियाँ देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपसे भी। आपने एक बड़ी बात कही इस कहानी से पहले कि प्रोसिक्यूशन एक अहम
पहलू हो सकता है इस पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन असम में जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया तो इसे समाज ने सीधे सीधे ह्यूमन राइट्स से भी जोड़कर देखा और तमाम सवाल उठाए। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर वो कश्मकश अभी भी जारी है। शायद इसलिए क्योंकि हम शायद इम्प्लीमेंटेशन को समझ नहीं पा रहे। सबसे पहला सबसे बुरा यहाँ अपराध क्या है? उस बच्ची जो 12 साल की है उसका यौन शोषण, उसका बलात्कार, उसको बेच दिया जाना, उसको उसकी पूरी तरह से स्वतंत्रता की हानि, उसके सारे मौलिक अधिकारों का हनन। इससे ज़्यादा बड़ा अपराध क्या होगा? और इससे बड़ा ह्यूमन राइट्स वायलेशन क्या होगा? हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं उसके लिए जो अपराधी है, हम उसकी बात नहीं करते जिसके ऊपर अपराध हुआ है। अगर आसाम में बच्चियों को बचाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए और कानूनी कार्रवाई की, तो जिसको जेल भेजा गया वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक 32 साल का, 35 साल का, 38 साल का आदमी है जो कि 13-14 साल की बच्ची का बलात्कार कर रहा है। और इसका नतीजा ये निकला, हमारा एक साथी संगठन है इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन, उसकी रिपोर्ट आई अभी 2 साल बाद कि 2021 की तुलना में आसाम में 81% गिरावट आई है बाल विवाह की दर में। आसाम जहां पे धुबरी जैसे जिलों में 55% थी बाल विवाह की दर। बाल विवाह की दर का मतलब है 100 में से 55 लड़कियों की शादी हो जाती थी बाल विवाह की तरह। आज वहां 81% कानून में कमी आई है कानून के अनुपालन से। सरकार ने अभी जो ये कदम उठाया, ये अकेला कदम नहीं है कि सिर्फ कानून का डंडा चलेगा और कुछ नहीं होगा। जहां एक तरफ ये कहा गया कि जो अपराधी है उसे सजा मिले, लेकिन बच्चियों के पुनर्वास के लिए एक नई स्कीम लाई गए। इसके अलावा बच्चियों की शिक्षा के लिए अभी वहां पे एक स्कॉलरशिप स्कीम शुरू हुई है, जिसमें यह है कि हर बेटी जो कि 8वीं के बाद पढ़ेगी, 14 तक तो हमारे यहाँ भारत में मौलिक अधिकार है, 14 के बाद बच्ची क्या करे? तो शिक्षा को मौलिक अधिकार जब तक हम नहीं बनाते 18 साल तक, तब तक तो ये लड़ाई चलती रहेगी। तो सरकारों ने उसका एक तरीका निकाला और ये किया कि एक स्कॉलरशिप दे दो, एक स्टाइपेंड दे दो, कंडीशनल कैश ट्रांसफर दे दो, ताकि बेटी स्कूल में लगातार बनी रह सके। तो अभी आसाम में वो भी होने लगा। यदि एक व्यक्ति जो कि शादी में खाना भी खा रहा है, उसको हमने कहा कि तुम अपराधी हो अगर तुम बताते नहीं, तुम अगर रिपोर्ट नहीं करते, और यदि उस व्यक्ति को जो कानून बन चुका उसके ऊपर यदि अनुपालन हो जाए तो हम सवाल उठाएं उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। ये कैसा कानून है? हमें कानून का जो रूल ऑफ लॉ है, जो कि एसेंस है सोसाइटी का, उसके लिए हमें पहले रूल ऑफ लॉ भी समझना पड़ेगा। अभी जो भारत सरकार ने बाल विवाह मुक्त अभियान को शुरू किया है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में जो एक स्ट्रैटेजिक बात हम कर रहे थे कि पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, कैपेसिटी, नॉलेज, इकोसिस्टम, एक शब्द मैंने अभी देखा आप लोगों ने कहा, इकोसिस्टम को पूरी तरह से चैलेंज करते हुए उस इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है जहां बाल विवाह पनपते हैं। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अर्जेंसी के साथ यदि हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे तभी इसमें होगा। आसाम की हम बात कर रहे हैं, आसाम में तो बाल विवाह की दर में कमी ही इसलिए आई है क्योंकि ये डर पैदा हुआ है। तुलसी रामायण में कहा गया भय बिन होए न प्रीत, तो ये भय बिन होए न प्रीत के बिना हम कैसे बात कर लेंगे? प्रोसिक्यूशन एक अहम मुद्दा है जिस पर लगातार काम होना चाहिए ताकि डर बना रहे, क्योंकि जो भी हो रहा है वो गैर कानूनी है। हम लगातार जुड़े हुए हैं और टेलीथॉन से जो अगले 2 घंटे तक हमारे सभी नेटवर्क पर जारी रहेगा। एनडीटीवी इंडिया पर हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ये टेलीथॉन जारी है एनडीटीवी 24/7 और एनडीटीवी प्रॉफिट पर। भुवन जी, असम जैसे राज्यों में बाल विवाह के प्रचलन को लेकर रोक लगाने के लिए काम तो हुआ है, लेकिन एक और राज्य है उत्तराखंड, जहां पर यूनिवर्सल सिविल कोड जनवरी में लागू हो जाएगा। इसमें बाल विवाह को रोकने के भी प्रावधान है और यही है अगला मुद्दा चर्चा का। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। धामी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इस मुहिम के लिए वक्त निकाला है। पिछले कुछ सालों में बाल विवाह को खत्म करने के लिए आपके राज्य ने क्या क्या रणनीतियां अपनाई? क्या आप कुछ ऐसे कदम बता सकते हैं जो खास तौर से आपके राज्य में सफल रहे? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे राज्य के अंदर बहुत जागरूकता है। भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी कार्यक्रमों को बहुत ही सक्रियता से क्रियान्वित कराया जाता है
और बाल विवाह के मामले हमारे यहाँ पहले से कम आए हैं, क्योंकि सभी शिक्षित लोग हैं, जागरूक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रेम विवाह इत्यादि के जो मामले आते हैं उसमें भी हम पूरा संज्ञान लेते हैं। और हमारे पूरे बाल विकास विभाग की टीम लगातार काम करती है, सुपरवाइज़र काम करते हैं, CDPO काम करते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी काम करते हैं। एक बड़ी संख्या हमारी जो है महिला एवं बाल कल्याण विभाग की इसमें लगातार लोगों को जागरूक करती है, और कहीं ऐसे मामले आते हैं तो उनका संज्ञान भी हम लेते हैं। जी धामी जी, सरकार ने पिछले महीने देश भर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया। आपको क्या लगता है कि ये देश व्यापी अभियान किस तरह से आपके ये जो प्रयास हो रहे हैं इसमें मदद करेगा? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद सभी अभियान बहुत ही समाज को बदलने का काम कर रहे हैं, समाज में क्रांति लाने का काम कर रहे हैं। और भारत सरकार का ये अभियान भी निश्चित रूप से सभी राज्यों को फ़ायदा देगा। हमारे राज्य में भी हम इसका भरपूर उपयोग करेंगे, भरपूर लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जी धामी जी, सरकार और जो नागरिक और सामाजिक संगठन हैं, जो उनके बीच का सहयोग है, जो कोलैबोरेशन है, आपके राज्य में बाल विवाह को खत्म करने के लिए कैसे मदद कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे यहाँ जो बहुत न्यून स्तर पर इस प्रकार की चीज़ें आती हैं उसको हम लगातार जनसंवाद से, आपस में नागरिकों के संगठनों के साथ बात करके उसको ठीक प्रकार से आगे बढ़ा रहे हैं। और कहीं पर भी ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कम हैं, बहुत न्यूनता में हैं, और आगे भी हमारा प्रयास होगा कि ये पूरी तरह से बाल विवाह मुक्त हमारा राज्य बने। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और अपनी रणनीतियां हमारे साथ साझा करने के लिए। भुवन जी, आपने सुना मुख्यमंत्री को, कोशिशें हो रही हैं, सरकार भी लगातार, चाहे वो राज्य सरकार हो, भारत सरकार हो, लगातार लगी हुई है कि इस कुप्रथा पर एक फुल स्टॉप लगे। भुवन जी, आप हमारी इस टेलीथॉन से लगातार जुड़े रहें। देश भर में बाल विवाह के प्रचलन पर रोकथाम के लिए हर कोई प्रतिबद्ध है। आज दिन भर देश के अलग अलग इलाकों में हमारी इस मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं, इस पर हम नज़र डालेंगे। लेकिन आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ें। प्लेज लें NDTV.com/childmarriage फ्री इंडिया पर लॉग इन कर। So do log in and do register your pledge there. The fight against child marriage is now India's fight against child marriage, and voices in support of the campaign are growing, from policymakers to the law and from civil society organizations to the public at large. Now, we just heard the Chief Minister of Uttarakhand. As we go into a short break, here are some voices from Parliament. देखिए, बाल विवाह एक ऐसा गुनाह है जो मतलब आपके अधिकार को, आपको उसकी जानकारी होने से पहले आपसे आपके अधिकार छीन लेता है। तो बहुत इसमें हमने बढ़ोतरी पाई है, काफ़ी हद तक बाल विवाह कम हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि हम सब जब मिलकर काम करेंगे तो हम इसका खात्मा जल्द से जल्द करा पाएंगे। और ये जो मुद्दा है, इसमें विपक्ष हो या सत्ता हो, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके लिए सब लोग एकजुट होकर काम और प्रयास करेंगे। इसमें हमें साथ ही प्रशासन और पुलिस की ज़रूरत है। मुझे लगता है सब लोग इकट्ठे काम करेंगे तो जल्दी हम इसका निस्तारण कर लेंगे। It needs multi-pronged action. It can't be only one single activity that can bring it down. Yes, obviously educating the parents is very important, definitely, and also educating the parents and also making sure you follow up with the schools that dropouts won't happen, and making sure enough scholarships are given to the girl children so that they can go and pursue their higher education. And also, this is all the encouragement and education that can be given. But on the other side, we also need to have a stronger laws to make sure that it acts as a deterrent. That if anyone goes ahead with this child marriage, the law can act very fast. If that can be implemented, definitely some sort of a it will definitely go in a right direction. But for that, it can't be one activity. It has to be multiple activities that has to happen.